In addition, I'm sure the deliberations of this then Gujarat to deliberate these issues. Gujarat has developed into a very interesting laboratory and landscape in agriculture sector depending on irrigation water. From groundwater exploration, we have moved to surface water sufficiency. From subsistence farming, we have moved to cash cropping. From wastage of irrigation water, we have moved to micro irrigation. From overdose of chemicals, we have devised soil health cards for scientific inputs. The income of our farmers has gone up 7 times in this decade. From a neglected sector, our agri sector has moved to a focused sector. And this convention is an example of that. Otherwise, it would not have been organized as a part of Vibrant Gujarat Global Investor Summit. We are doing this because this sector is important and we know we can do even better. We want to do much better in terms of farm mechanization, increasing productivity, building agri-infrastructure, and finally, a value addition, preservation, packaging, and marketing. Moreover, the present globalized environment also needs a holistic approach to farming and all related activities. Strengthening of the forward and backward linkages between agriculture and industry has also become a prerequisite. Friends, you are aware that agri sector is very important for the humanity. It is not only important for feeding us today, but also for feeding in a manner that we remain healthy. Moreover, we have to find ways which enable agri prosperity in a manner that our natural resources like land and water are not directly on agriculture. Friends, in the last decade, Gujarat has emerged as one of the most progressive states of India, be it on the industrial front or the agriculture front. Gujarat continues to make rapid progress in industry, contributing 17% of the country's industrial output. At the same time, Gujarat has also changed the way in which agriculture is seen in the country. बड़े कुछ बातों के साथ मैं कुछ बातें और भी बताना चाहता हूं। हम लोग वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं। उस समिट के साथ हम हर बार कोई न कोई स्पेशल इवेंट भी रखते हैं। जब हमने 2007 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, तो उसके पूर्व में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग ग्लोबल समिट किया था। जब हमने 2009 में एंड 2011 में वाइब्रेंट समिट किए, तो दोनों समय हमने नॉलेज को आधार बना करके यूनिवर्सिटीज के साथ, नॉलेज पार्टनर के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके उस हमारे इन्वेस्टमेंट समिट को एक नया रूप दिया। जब हम 2013 में जनवरी महीने में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं, तब हमने सोचा
कि इस वर्ष उसी वाइब्रेंट समिट के हिस्से के रूप में पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए एक डेडिकेटेड वाइब्रेंट समिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर करें, और उसी का परिणाम है कि आज हम सब बैठ करके एक एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं उसका विचार विमर्श करने जा रहे हैं। हमारे देश में इस प्रकार का पहला ये इनिशिएटिव है जो किसी राज्य ने लिया, और इसकी सफलता को देखते हुए, क्योंकि इसको हमने ज्यादा हाइप नहीं की थी, बड़ा लो प्रोफाइल शुरू किया था। ये आज इतना बड़ा समारोह हो रहा है, अब तक अखबार में इसके संबंध में एक लाइन भी नहीं छपी, टीवी में भी कोई खबर नहीं आई। उसके बावजूद भी 11 प्रदेश और हजारों की तादाद में किसानों का यहां होना, 7 देशों की पार्टनरशिप होना, ये अपने आप में कितना मेटिकुलसली साइलेंटली इस काम को हमने ऑर्गेनाइज किया होगा, कितना महत्व दिया होगा, इसका आपको अंदाज आता है। और इसकी सफलता को देखते हुए मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर फेयर इजराइल करता है, और हर 3 वर्ष में एक बार करता है, और दुनिया के 100 से अधिक देश इजराइल के उस काम में जुड़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान से भी इजराइल के एग्रीकल्चर फेयर को देखने के लिए हर वर्ष 15 से 20 हजार किसान अपना जेब का खर्चा करके वहां जाते हैं। गुजरात से भी 1200, 1500, 2000 किसान इजराइल के एग्रीकल्चर फेयर को देखने के लिए जाते हैं। करोड़ों रुपया खर्च हमारा किसान, हमारा देश का किसान भारत के एग्रीकल्चर में कुछ नया लाने के लिए, सीखने के लिए इजराइल जाता है। भाइयों बहनों, गुजरात सरकार ने तय किया कि अब हम आगे, जैसे हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, उसी प्रकार से अलग से एवरी 3 ईयर इजराइल भी हर 3 साल में एक बार करता है, हम भी हर 3 साल में एक बार इसी लेवल का, इजराइल के लेवल का ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल एग्रीकल्चर इवेंट हम करेंगे। और उसमें कृषि के क्षेत्र में दुनिया में जितने नए संशोधन हुए हैं, दुनिया में जितनी नई प्रगति हुई है, हर 3 वर्ष में एक बार इसी महात्मा मंदिर में किसानों के लिए मैं मेला लगाऊंगा, और हिंदुस्तान भर के किसान कृषि क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़े। हमारे देश में कुछ मान्यताएं बन गई हैं, गुजरात ने उन मान्यताओं को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे देश में खेती तो ऐसी होती है, भाई 1 एकड़ में इतना ही पैदा होता है, नहीं भैया ये ज्वार किया तो ज्वार के बिना कुछ हो नहीं सकता है। ऐसी एक निराशा की मानसिकता घर कर गई है। हमने गुजरात के एक्सपीरियंस से देखा है कि हमारे यहां आज से 10 साल पहले मान्यता यही थी। एक जमाना था जब माना जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ये कहावत हर घर में थी हमारे यहां। लेकिन धीरे धीरे स्थिति क्या बनी, किसान के परिवार में अगर 3 बच्चे हैं तो बाप सोचता है ये जो होनहार बच्चा है, पढ़ा लिखा अच्छा समझदार है, उसको बोलो कहीं सरकार में बाबू बन जाए। ये दूसरा थोड़ा ठीक है, चलो उसको कोई न कोई छोटी मोटी दुकान लगा दो, पान का ठेका लगा दो, व्यापारी में लगा दो, काम कर लेगा। ये जो बुद्धू बचा है घर में, तीसरा कम क्षमता है, चलो उसको खेती के काम में लगा दें। यानी घर में भी ये सोच पड़ गई थी कि भाई कृषि से कुछ निकलने वाला नहीं है, पेट भरने वाला
घर चलने वाला नहीं है, छोड़ो यार, कृषि की तरफ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा कम क्षमता वाला है उसी को उसमें लगा दो। ये सोच बन गई थी किसी जमाने में। भाइयों बहनों, हमने बेड़ा उठाया है। जो सदियों पहले हमारे पूर्वज कहते थे, अगर उत्तम से उत्तम कोई काम है तो खेती है, कृषि है। हम फिर से एक बार उसको पुनः प्रस्तावित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर उत्तम से उत्तम करने जैसा कोई काम है वो खेती है। और मैंने देखा अभी कई किसान भाई बहनों को मुझे सम्मानित करने का अवसर मिला। बहुत कम किसान उसमें ऐसे थे जो 50-55 से ऊपर की उम्र के थे। अधिकतम किसान नौजवान थे, धोती कुर्ते में नहीं थे, सर पे पगड़ी वाले नहीं थे, जींस का पैंट पहना हुआ। यानी नौजवान कृषि की ओर आकर्षित हुआ है, कृषि में नया प्रयोग करना चाहता है, उसने कृषि को महत्व दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने अभी अपने मंच पर देखा। अगर ये संभावनाएं पड़ी हैं तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम कृषि को कैसे आगे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, पहले हम कृषि के विषय में सरकार भी सोचती थी, देश की सरकार भी सोचती थी। क्या सोचती थी कि भाई फसल खराब ना हो जाए, ये देखो। उससे ज्यादा सोचा नहीं जाता। भारत सरकार का कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, राज्य सरकार का कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एग्रो फंडिंग होता है। इन सारे विषयों का हमारे देश में चर्चा में ही नहीं था। जिसका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट अपने ऑफिस चला रहा है। यूनिवर्सिटी वालों को लगता था कि हमें बीएससी एग्रीकल्चर बच्चे पैदा कर करके छोड़ दे रहे हैं, बस। ये सब टुकड़ों में ही चलता था। गुजरात सरकार ने सबको एक करने का, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया। हमने कृषि महोत्सव के माध्यम से कृषि क्षेत्र की जितनी विधाएं हैं, जितनी शक्तियां हैं, जितनी सोच है, जितने अनुभव है, जितनी आशाएं हैं, सबको जोड़ने का एक काम किया और एक नया विश्वास पैदा किया। और सरकार एक कैटलिक एजेंट के रूप में, एक उद्दीपक की तरह उन सबके बीच में जुड़ी। और जुड़ने का परिणाम यह हुआ कि देश कृषि विकास 3% से आगे नहीं ले जा रहा है। गुजरात जैसा प्रदेश जो कुदरत पर जीता है, जिसके पास नदियां नहीं है, उस गुजरात ने पूरा एक दशक 10% से भी ज्यादा कृषि विकास दर करके दुनिया के लोगों को भी अचंभे में डाल दिया। इजराइल की खेती का बहुत बड़ी तारीफ होती है, लेकिन इजराइल के कौंसिल जनरल ने जब ये सुना अभी मंच पे कि गुजरात 10% है तो उनको आश्चर्य हुआ। यानी इजराइल के लोगों को भी सरप्राइज हो रहा है कि गुजरात कैसे 10% पहुंचा है। भाइयों बहनों, गुजरात अगर पहुंच सकता है तो हिंदुस्तान भी पहुंच सकता है। और भाइयों बहनों, हमने सपना देखा। अगर हम सपना देखें तो स्थितियां बदली जा सकती। हम सबको याद है यहां जो जिनकी आयु 55-60 साल हुई होगी, उन सबको पुरानी कथाएं याद होगी। हमारे देश में पेट भरने के लिए नेहरू के जमाने में PL 480 गेहूं विदेश से लाना पड़ता था। पंडित नेहरू के जमाने में हिंदुस्तान को पेट भरने के लिए हिंदुस्तान में अन्न पैदा नहीं होता, अन्न बाहर से लाना पड़ता था। PL 480 गेहूं गुजरात के बंदरों पर आते थे और पूरे देश में वो जाते थे। सरकार की आधी मशीनरी इस बात में बिजी रहती थी कि बंदरों पर माल कब पहुंचेगा, वो माल कब उठाया जाएगा, उस माल को हिंदुस्तान के कोने कोने कैसा पहुंचाया जाएगा। सरकार की आधी मशीनरी उसी में लगी रहती थी। वो दिन हिंदुस्तान ने देखे हैं, आजाद हिंदुस्तान ने देखे हैं। लेकिन एक लाल बहादुर शास्त्री आए और लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्र दिया, जय जवान जय किसान। और लाल
हिंदुस्तान के किसानों को कहा कि मेरा देश कृषि प्रधान हो, मेरे देश के किसानों में इतना दम हो और हिंदुस्तान को पेट भरने के लिए दुनिया की ओर देखना पड़े, ये स्थिति मुझे मंजूर नहीं है, हमने कुछ करना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान के किसानों का आह्वान किया और भारत के किसानों ने लाल बहादुर शास्त्री के एक शब्द पर अपना जीवन लगा दिया और अन्न के भंडार हो गए। मेरे देश के किसान ने रात दिन पसीना बहाया, हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए और उसके बाद इस देश को पेट भरने के लिए कभी विदेशों से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये काम मेरे देश के किसानों ने किया है। यही जमीन, यही पानी, यही पद्धति, लेकिन सही नेतृत्व मिला तो देश का किसान खड़ा हो गया और देश के अन्न भर दिए, अन्न के भंडार भर दिए। भाइयों बहनों, क्या हम अपना ही पेट भरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? मेरे किसान भाइयों बहनों, 11 राज्य के किसान मेरे सामने बैठे हैं। मैं गुजरात जैसे एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री, आपका सेवक, मैं आपके दिलों में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान का किसान सिर्फ अपना ही पेट भरने के लिए पैदा हुआ है? नहीं। क्या हिंदुस्तान का किसान सिर्फ हिंदुस्तानियों का पेट भरने के लिए पैदा हुआ है? नहीं। भाइयों बहनों, मेरे देश का किसान सपना देखे, पूरा हिंदुस्तान सपना देखे कि हम पूरे यूरोप का पेट भरने की ताकत रखते हैं। पूरे यूरोप हम इतने आगे बढ़े कि यूरोप के लोगों को चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, हिंदुस्तान के किसान पर निर्भर रहना पड़े। हिंदुस्तान का किसान जब तक भेजे नहीं तब तक उसको पेट न भर पाए। इतनी ताकत हमने दिखानी चाहिए, सपना देखना चाहिए। हम पूरे यूरोप को खाना दे सकते हैं, पूरे यूरोप को खिला सकते हैं। ये सपना देख करके हमने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए और उसके लिए देश में जो करना पड़े, जो नीतियां लानी पड़े, वो लानी चाहिए। अगर हम मरते मरते यही रहेंगे, नहीं चलो यार अपना घर चल जाए तो ठीक है, तो फिर प्रगति नहीं होगी। प्रगति तब होती कुछ नया करने के इरादे हो, तब होती। लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदुस्तान का पेट भरने की ताकत तो दे दी, अब समय की मांग है और इस वाइब्रेंट गुजरात के समिट से, इस एग्रीकल्चर समिट से हम एक ऐसा संकल्प लेकर के जाएं कि हम पूरे यूरोप को फीड कर सकें। हम पूरे यूरोप का राइस बाउल क्यों नहीं बन सकते? हम पूरे यूरोप का वेजिटेबल बाउल क्यों नहीं बन सकते? हम पूरे यूरोप का व्हीट बाउल क्यों नहीं बन सकते? बनने का सामर्थ्य इस देश के किसानों में है। सपना वो देखना चाहिए और अगर उस सपने को लेकर के पूरा करना है तो हमने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना पड़ेगा। हमारी पुरानी परंपराओं को बदलना पड़ेगा। फ्लड इरिगेशन से निकलना पड़ेगा, माइक्रो इरिगेशन की ओर जाना पड़ेगा। और मैं कुछ साल पहले एग्रीकल्चर फेयर में इजराइल गया था और मैं विश्व के लोगों के सामने मैंने एक प्रेजेंटेशन रखा था कि गुजरात क्या सोचता है। और उस प्रेजेंटेशन का मेरा जो सेंट्रल आइडिया था, मैंने कहा था हमने तय किया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। एक एक जल बिंदु से, एक एक टीपा भर पानी से हम अनाज पैदा करना चाहते हैं। कोई बूंद पानी की हम गंवाना नहीं चाहते, हर बूंद से कुछ न कुछ पैदावार करना चाहते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का सपना हमने संजोया है और मुझे खुशी है कि मेरे गुजरात में 1960 से 2001 तक 40 साल में 1000 हेक्टेयर भूमि में भी माइक्रो इरिगेशन नहीं था, स्प्रिंकलर नहीं थे, ड्रिप इरिगेशन नहीं था। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल लगातार हमने जो कोशिश की है, आज मेरे किसान भाइयों बहनों ने मुझे जो सहयोग दिया, हमारी बात को मान लिया, उसका नतीजा ये है
कि 40 साल में 1000 हेक्टेयर में मुश्किल से माइक्रो इरिगेशन हुआ था। इन दिनों 7 लाख हेक्टेयर भूमि में माइक्रो इरिगेशन। कहां 40 साल में 1000 और कहां 10 साल में 7 लाख हेक्टेयर माइक्रो इरिगेशन। पानी बचा, खेती में सुधार हुआ है। अभी मैं हमारे कुछ गुजरात के बंधु जब अवार्ड लेने आए थे तो मैंने एक बंधु का परिचय इजराइल के काउंसिलर को कराया। मैंने कहा ये नौजवान है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम प्रस्थापित कर दिया है। तो क्या कहा? मैंने कहा 1 एकड़ भूमि में सबसे ज्यादा पोटेटो पैदा करने का काम उसने दुनिया में करके दिखाया है। करीब करीब 88 टन आलू, 88 टन आलू दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी आपके सामने से यहां होके गए, यहां बैठे हैं। ये ताकत हमारे लोगों में है और हम ये परिवर्तन लाना चाहते हैं। आज गुजरात हमारा किसान वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने लगा, फ्रूट्स एक्सपोर्ट करने लगा है। कच्छ जो रेगिस्तान, वो आज दुनिया के बाजार में मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है। मेरा बारडोली सरदार पटेल के नाम के साथ जुड़ा हुआ। आज दुनिया में किसी को भिंडी खानी है तो बारडोली की भिंडी फेमस हो गई है। ये मेरे किसानों ने किया। मेरा किसान कल तक ये सोचता था कि गन्ने की खेती के लिए भरपूर पानी चाहिए। हम उनके पीछे लगे, समझाने लगे, और किसान को भाषणों से नहीं समझाया जा सकता। किसानों को उपदेश देने से काम नहीं चलता है। किसान का स्वभाव है जब तक अपनी आंखों से चीजों को देखता नहीं है तब तक वो स्वीकार नहीं करता। किसी प्रयोग को खुद जांचता नहीं है, परखता नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो अगर ये प्रयोग करने जाए और साल बेकार हो गया तो बच्चे भूखे मर जाए। इसलिए किसान हिम्मत नहीं कर सकता। हमने प्रयोग किया हमारी शुगर की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से कि फ्लड इरिगेशन की जरूरत नहीं है, माइक्रो इरिगेशन से भी गन्ने की खेती हो सकती है। शेरड़ी की खेती करी शकाय। और आज मेरे गुजरात के अंदर जहां दक्षिण गुजरात में पानी उपलब्ध है उसके बावजूद भी आज मेरे किसान वहां पर माइक्रो इरिगेशन से शुगर कैन करने लगे हैं। उसका फायदा कितना हुआ है? हिंदुस्तान के शुगर के अंदर, शुगर कैन में जितना शुगर कंटेंट होता है उससे गुजरात में माइक्रो इरिगेशन से जो शुगर पैदा करता है उसका शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। उसमें से शक्कर ज्यादा निकलती है, शुगर ज्यादा निकलती है। ये काम गुजरात के किसानों ने करना शुरू किया है। भाइयों बहनों, अनेक प्रयोग। अब सोयाबीन में मध्य प्रदेश, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन वो पट्टा था जो फेमस था। मेरे दाहोद के आदिवासियों ने, पंचमहाल के आदिवासी किसानों ने, छोटी जमीन थी, 1-2 बीघा जमीन थी, उन्होंने फैसला किया कि हमें सोयाबीन की खेती करनी है। और आज सोयाबीन एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में मेरा आदिवासी किसान आ गया। फूलों की खेती करने लगा है। दुनिया में जो सबसे महंगे फूल होते हैं उन महंगे फूलों की खेती ग्रीन हाउस के माध्यम से मेरे गांव का गरीब किसान करने लगा है। कम मात्रा में क्यों न हो, लेकिन एक सही दिशा में हमारी शुरुआत हुई। और ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि जैसे फैक्ट्री में पैदावार होने वाली हर उत्पादन करने वाली चीज उसको ग्लोबल इकोनॉमी का इंपैक्ट होता है, ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट होता है, ग्लोबल कंज्यूमर का इंपैक्ट होता है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर को भी ग्लोबल इकोनॉमी का इंपैक्ट होता ही है, ग्लोबल मार्केट का असर होता है। और इसलिए
हमारा किसान भले गांव में बैठा हो, लेकिन विश्व के कृषि अर्थकारण कैसा चलता है उसमें हमारे हिंदुस्तान के गांव का किसान टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, उसको हमने नजरअंदाज नहीं करना होगा। हमें उसको ध्यान में रख करके हमारे किसान को ताकतवर बनाना पड़ेगा, हमारे किसान को मजबूत बनाना पड़ेगा। और अगर ये सपना देखते हैं तो स्थितियां बदली जा सकती। मेरे किसान भाइयों से भी प्रार्थना है कि पहले गाय इतना ही दूध देती थी, वो तो ऐसा ही है। पहले 1 बीघा जमीन में इतना ही फसल होता था, मेरे बाप दादा के जमाने में भी यही होता था। भाइयों बहनों, इन सपनों से बाहर अब तय करो। अब जमीन बढ़ने वाली नहीं है, जो जमीन है उसी में उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसमें पहले 200 किलो पैदावार होती थी तो उतनी ही जमीन में 400 किलो पैदावार कैसे हो? और ये आज के विज्ञान के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में हमें सब कुछ संभव है। हमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और उसमें हमने प्रयोग किया सॉइल हेल्थ कार्ड का। सॉइल हेल्थ के कार्ड के कारण आज हिंदुस्तान में नागरिकों के पास भी अपना हेल्थ कार्ड नहीं है। उसका आरोग्य कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, उसका कोई कार्ड हिंदुस्तान के नागरिक के पास नहीं है। लेकिन गुजरात के किसान के पास उसकी जमीन की तबीयत कैसी है, जमीन का स्वास्थ्य कैसा है, वैसा हेल्थ कार्ड उसके पास उपलब्ध है। उसके कारण उसे पता चलता है कि मेरी जमीन किस क्रॉप के लिए, किस पाक के लिए अनुकूल है, मेरी जमीन में क्या कमियां हैं जिसके कारण मुझे कौन सी दवाई डालनी चाहिए, मेरी जमीन में क्या कमियां हैं जिसके कारण मुझे कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए। ये सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण मेरे गुजरात में सामान्य रूप से किसान का जो वेस्ट होता था वैसा 15,000, 20,000, 25,000 रुपया साल का सिर्फ सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण बच गया। भारत सरकार ने भी गुजरात की तर्ज पर हिंदुस्तान के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का तय किया है। वो कब दे पाएंगे मैं नहीं जानता हूं, वो कहां फंसे रहते हैं सबको मालूम है। इसलिए किसान के लिए कब उनकी बारी किसान की आएगी उनके कारोबार में, कोयले से निकलने के बाद जब किसान की तरफ देखेंगे तब जाकर के सॉइल हेल्थ कार्ड का मामला आप तक पहुंच पाएगा। अभी तो वो कोयले में फंसे पड़े हैं और देश का भी पता नहीं मुंह काला हो रहा है, पता नहीं कब बचेंगे हम उससे। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली भले कोयले में डूबा हो, हम तो किसान में डूबे हुए हैं। हमारे लिए किसान सब कुछ है, हमारे लिए गांव सब कुछ है। हमारा किसान प्रगति करे, हमारा सपना है, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए जिस प्रकार से उत्पादन में बदलाव, उसी प्रकार से आवश्यकता है जो पैदावार हुई है उसका रख रखाव। हमारे बजट का अधिकतम खर्चा करना पड़े तो करें। किसान जो पैदा करता है, जब तक उचित दाम नहीं मिलता है, वो अपना माल उत्पादित किया हुआ उसको रखने की जगह मिलनी चाहिए। अगर उसे वो रखने की जगह मिलती है तो बाजार को वो कंट्रोल कर सकता है। आज बेचारा अगर कॉटन पैदा करता है, कॉटन संभालने की जगह नहीं है, इसलिए बाजार में जिस दाम से माल बेचना पड़ेगा वो बेच देगा। लेकिन अगर उसकी कॉटन को रखने की व्यवस्था मिल गई तो फिर वो तय करेगा इतने कम दाम में मैं नहीं दूंगा, जनवरी में आना जब दाम बढ़ेगा तब दूंगा। ये विश्वास मुझे आता है। अब मैंने यहां लाया है गुजरात में जमीन में। एक जमाना ऐसा था कि किसान को घर में कोई अवसर हो, बेटी की शादी करवानी हो, जमीन बेचने जाता था तो कोई लेने वाला नहीं मिलता था। बेचारे को 3 जगह 4 जगह हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे। यहां तक कहना पड़ता था ठीक है आधे पैसे दे दो लेकिन जमीन ले लो, बेटी की शादी करवानी है। आज हमने गुजरात में स्थिति पैदा की है कि बहुत बड़ी गाड़ी लेकर के, कोट पैंट टाई पहन करके कोई जमीन लेने आता है तो किसान अपनी खटिया पर बैठे बैठे कह देता है आज मेरा मूड नहीं है, अगले मंगलवार, आज मैं जमीन नहीं देना चाहता ना, कह देता है। ये मिजाज लाया जा सकता है, किसान की ताकत लाई जा सकती है। कल लोग उसको जमीन कम पैसों से लेने के लिए मजबूर करते थे, आज किसान तय करता था कि इससे कम जमीन नहीं मिल सकेगी, जाओ। और मेरा गुजरात का किसान तो व्यापारी भी है,
वो यहां अगर 50 बीघा जमीन बेचता है तो उसके आधे पैसों में 200 बीघा जमीन दूर खरीद लेता है। इसलिए दूर की जमीन का भी दाम बढ़ता चला जा रहा है। मेरे किसान की ताकत बढ़ रही है। पहले उसकी जमीन से बैंक से लाख रुपया भी नहीं मिलता था, आज उतनी जमीन से बैंक से वो 1 करोड़ रुपया कर्ज ले पा रहा है। जमीन के दाम बढ़ने से किसान की ताकत बढ़ी है। भाइयों बहनों, जो लोग झूठ फैलाते हैं, जो लोग गुजरात को बदनाम करने की दिन रात कोशिश करते हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं। ये गुजरात अकेला राज्य हिंदुस्तान में ऐसा है कि जहां कृषि विकास भी हुआ, औद्योगिक विकास भी हुआ, हमारे यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हुआ। आमतौर पर अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो कृषि की जमीन घटती है, लेकिन गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बढ़ा और कृषि योग्य भूमि में भी 37 लाख हेक्टेयर भूमि के इजाफा हुआ। 37 लाख हेक्टेयर जमीन ज्यादा कृषि योग्य हमने बनाई है। हमने किसान को ताकतवर बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, झूठ बोलने से खेत में पैदावार पैदा नहीं होती है। आप इंसान को गुमराह कर सकते हो, लेकिन फसल में पैदावार में बदलाव नहीं ला सकते हो। हमारा सपना है एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव। भाइयों बहनों, आज यही समिट, मेरी वाइब्रेंट समिट होती है तो इतनी संख्या नहीं होती, कम होती है, लेकिन उसकी तस्वीर पहले पेज पर बहुत बड़ी छपती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े उद्योगकार आते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मेरे लिए ये समिट है। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण समिट है। भले जिनकी तस्वीर कभी टीवी पे दिखती नहीं होगी, जिनका नाम अखबार में नहीं आता होगा, जिनकी तस्वीर अखबार पर छपती नहीं होगी, ये मेरे फार्मर, मेरे किसान यहां है। यही मेरे देश की ताकत है, यही सच्ची ताकत है। और इसलिए हमने इस वाइब्रेंट समिट को किया है। और इसी के भरोसे हम कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, हम कृषि क्षेत्र में एजुकेशन लाना चाहते हैं, हम कृषि क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लाना चाहते हैं। मैं भाइयों बहनों, देश भर के किसान पुत्रों को कहना चाहता हूं, हम गुजरात के अंदर इजराइल साथ मिलकर के एक ऐसी इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना चाहते हैं कि जिसमें कृषि में ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करने के लिए वो गुजरात आए। इजराइल के साथ मिलकर के हम ऐसे इंस्टीट्यूट खड़ी करेंगे और उसको प्रैक्टिकल फार्मिंग के साथ सारी चीजें सिखाएंगे और उसको पीएचडी की डिग्री इजराइल की यूनिवर्सिटी से दिलवाएंगे। ऐसी एक इंस्टीट्यूट का जन्म हम आने वाले दिनों में गुजरात में करना चाहते हैं। एक संशोधन के क्षेत्र में ये काम देश को करना चाहिए था, लेकिन दिल्ली क्या करेगा पता नहीं, और हम उसके लिए इंतजार करके नहीं बैठ सकते। हम गुजरात में करना चाहते हैं और मेरी आज भी इजराइल के लोगों से वो फाइनल रूप में आ गई है। आने वाले दिनों में उसका फैसला करके हम देश और दुनिया के लिए एक नया नजराना देंगे। मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को, गुजरात के इस महत्वपूर्ण योग अभियान को आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं। और सिर्फ आज के लिए प्रारंभ करना ऐसा नहीं हो, इजराइल की तरह हम भी हर 3 साल में एक बार एक ग्लोबल लेवल का एग्रीकल्चर फेयर करेंगे। एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग हैं, टेक्निकली जो लोग एडवांस हैं, उन सबको बुलाएंगे और मेरे देश के किसान इजराइल जाना न पड़े, दुनिया की सारी अच्छी चीजें वो हिंदुस्तान में देख सके, सीख सके और प्रयोग कर सके। इसके लिए अच्छी उर्वरा भूमि हम इस महात्मा मंदिर को बनाने का फैसला कर रहे हैं। और मैं निमंत्रण देता हूं कि 3 साल के बाद फिर इस प्रकार का कार्यक्रम हो और अधिक मात्रा में मेरे किसान आए और किसानों को जो सीख रहा है, जो चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी देने का काम। और वो सिर्फ जरूरी नहीं सिर्फ गुजरात के किसान, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से किसान आएगा, वो मेरे गुजरात का भाई है। ये सरदार पटेल की भूमि है, सरदार पटेल किसानों के नेता थे। सरदार पटेलों की उस विरासत को हम निभाएंगे और उस विरासत के आधार पर हिंदुस्तान के हर किसान का गुजरात पर अधिकार है। सरदार पटेल पर उसका अधिकार है तो गुजरात पर भी उसका अधिकार
अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।